Okay, today topic is endocrine system of vertebrate other than the birds or the mammals. What does this mean? Here we will study about the endocrine system of the three classes of vertebrate except the birds and mammals. What are those three classes? As we know, fish, amphibians, and the reptiles. And we will start from the second paragraph here. uh, uh, जहाँ पर वो बता रहा है कि the birds and the mammals show the similarities in their endocrine system, but the difference do exist in the birds and mammals. Although birds and mammals, the birds in the class of aves and the mammals in which the humans are also including, they have the complex and most modified endocrine system as compared to the fish and amphibians and reptile. Why the system of birds and mammals are more complex? Because they are advanced and modern and well evolved species of modern era. When we discuss about the primitive evolved species, for example the fish, so their endocrine system is simple as compared to birds and mammals. And here we will start from the recent research has revealed the following three aspects of endocrinology, as we will exclude by the study of endocrinology that there is a difference between the endocrine system of birds and mammals, and what are the main points of their difference is given below. यहाँ पर वो बताएगा कि hormones that are performing the same function in the different species may not be the chemical identical. For example, the melatonin is a hormone that are related to the skin color, but they may be chemically different because their chemical formula, chemical structures may be different in the two different species, although their function is related to the pigmentation related to the skin coloration. So the second point of the difference between the birds and mammals is that the certain hormones are the species specific with respect to their function. वो species specific होते हैं अपने functions को लेकर. वो different species में जो है वो एक specific function perform कर रहे होते हैं, and they completely function. Some hormones produced in one species may be completely function in another species. और अगर एक हार्मोन जो है वो एक ही स्पीशी में एट अ वन टाइम एक काम कर रहा है, तो अगर उसको स्पीशी से निकाल कर दूसरी स्पीशी में इंजेक्ट किया जाए तो उसका वहाँ पर भी वही फंक्शन होगा. फॉर एग्जांपल मेलाटोनिन आगे आएगा एक्सपेरिमेंट में कि उसको एक फ्रॉग से निकाल कर दूसरे फ्रॉग में किया, तो एक फ्रॉग में भी वो कलर ही दे रहा था और दूसरे फ्रॉग में भी वो कलर इंड्यूस कर रहा है. तो ये बात है कि जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पीशी में वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन की बात करते हैं तो वो अगर फ़िश की बात करें तो उसमें वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर मैमल्स में ह्यूमंस की बात करें तो वो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है प्रोलैक्टिन. लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ में क्या होता है कि सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द हार्मोन फ्रॉम द वन स्पीशी में elicit a different response in the same target cell or the tissues of the different species. कि मतलब एक हार्मोन जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके में हम लेंगे कि अगर एक हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक स्पीशी में वो उसकी किडनी उसका टारगेट सेल है और वो किडनी से जो है वो करवा रहा है, ओस्मो रेगुलेशन करवा रहा है और अपटेक ऑफ द सोडियम आयन या फिर पोटाशियम आयन करवा रहा है. लेकिन अगर वही हार्मोन जो कि एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसका टारगेट किडनी है, वो दूसरी स्पीशी में जाए तो मे बी वो ओस्मो रेगुलेशन के फंक्शन में इन्वॉल्व ना हो, ना ही वो सोडियम की अपटेक कराए, मे बी उसका टारगेट सेल तो वो किडनी ही हो, लेकिन किडनी को वो डिफरेंट उसको इंड्यूस करे. तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पीशी टू स्पीशी स्पेसिफिक भी होते हैं, उनके फंक्शन भी स्पेसिफिक हैं, और आइदर दे कैन डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. सो अगर हम दो ग्रुप को जो है वो डिस्कस करते हैं,
एक हमारे पास एंशियंट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट है, फॉर एग्जांपल फिश, दे हैव ओनली अ वन living environment that is aquatic, and as compared to the other, for example amphibians and the reptiles and the mammals and the birds also, because they can walk and they can fly too. So अगर उन एज़ कम्पेयर टू एंशियंट ग्रुप की बात करें वर्टिब्रेट, दे हैव द सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, नॉट मच एडवांस. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम फ़िश की बात करते हैं जो कि एक एंशियंट वर्टिब्रेट क्लास है, या फिर ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट हम कह सकते हैं कि एक्वाटिक ओरिजिन था ऑल वर्टिब्रेट का. तो वहाँ पर उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मैमल्स के एंडोक्राइन सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द हार्मोन्स. उनमें नंबर ऑफ़ हार्मोन्स जो हैं वो मैमल्स में ज़्यादा हैं और फ़िश में जो है वो कम है, और इसके अलावा जो है वो उनका ओल्डेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम उनमें पाया जाता है. तो देन